नमस्कार सभी भक्तजनों का सादर स्वागत है। लोग अपने थर्सडे के इस जूम सत्संग मीटिंग में भगवद गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज हम लोग 18वां अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। तो ओवर टू यू यतेंद्र जी, आप इसको शुरू करिए तो हम लोग इसका पाठ करते हैं। By the great mercy of Lord Krishna, we have arrived at the chapter 18, which is the last chapter of Sri Bhagavad Gita. Well, most of the subject matter has already been covered in 17th chapter, and in the 18th chapter, Lord Krishna is giving the summary and a further explanation, which somebody, if missed somebody, that explanation that is given in this chapter. And it has many subjects. It starts with Arjun requesting Shri Krishna to educate him on renunciation and explain the difference between the two Sanskrit words. There are sannyas and tyag. Both they mean to abandon, but Lord Krishna is explaining the subtle difference between these two terms. So we will start from the first shlok, which is इसका नाम क्या है जी? कंक्लूजन द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन इंग्लिश में है। इसका है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग, ठीक है। Yes. So it starts with the Arjun's questions. He says, "Sannyasas mahabaho tattum ichhami veditum tyagasya cha hrishikesh prithak keshi nishudhan." Okay, just 1 second. I just want to see if Mr. Nair is not here, okay? Because I was speaking in English because of him. So would you like me to switch over in Hindi? Yes, please. Hindi Okay. is okay if anyone has any they want English also in any particular instance, please raise your hand and then you can explain in English. Yeah, we can go short in English too, okay? So this is Arjun said, "O mighty armed Krishna, I wish to understand the nature of sannyas, renunciation of action, and tyag, renunciation of the desire for the food of God. O Hrishikesh, I also wish to know the distinction between the two." So there are two words, दो शब्द हैं, एक तो है संन्यास और दूसरा है त्याग। तो यहाँ पर वो पूछता है, अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि इन दोनों में क्या डिस्टिंक्शन है। इसमें लॉर्ड कृष्णा के लिए दो शब्द यूज किए हैं, एक तो माइटी आर्म और दूसरा है केशी निशूदन। केशी वाज ए डीमन व्हिच लॉर्ड कृष्णा destroyed. So keshi here is doubt is a keshi, okay? When you have a doubt in your mind, that is a demon. So that's why he has addressed as keshi nishudhan. So okay, so here that question is clear to everybody, that what is the difference between the tyag and the sannyas. Let me read the English translation here in the Bhagavad Gita as it is. Says, Arjuna said, "O mighty armed one, I wish to understand the purpose of renunciation, in brackets tyag, and the renounced order of life, in brackets sannyasa. Okay. O killer of Kasi demon, master of the senses." Okay, so second is Shri Bhagavan Vach. Kamyanam karmanam nyasam sannyasam kavyo viduhu sarva karma phal tyagam rahus tyagam vichakshana. The Supreme Divine Personality said, giving up of actions motivated by desire
is what the wise understand as sannyas. Relinquishing the fruits of all action is what the learned declare to be tyag. So I have already done the English. So there are two, the sannyas. Sannyas is when you just don't do anything. That is sannyas. You see, the yogis, they used to go in a forest, giving up everything. We are not going to do anything. No yagya, no dan, no tap, because they all bring some reward, okay? So that's what they used to call sannyasi. Now we are not going to we have given up the action. And tyag is you do the action, but you renounce the fruit of that action. That is tyag. Tyag means giving up the fruits of your action. That's what tyag. So Lord Krishna says that. रेंज एक चीज आती है इसके अंदर, हाँ जी बताइए। हल्के वो त्याग करते हैं ना, हाँ। तो वो त्याग के क्या माने हैं? क्योंकि फल तो अपने आप ही आएगा, आप त्याग कर देंगे पर तो फल तो निश्चित रूप से आएगा। देखिए इसमें आए दो चीजें हैं। एक तो आपने काम किया फल की आशा के बिना, ओके, अब आए या ना आया, मुझे नहीं पता कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो जब करता है जब किया जाता है कोई कर्म, शास्त्र कर्म, उसको किया जाता है संकल्प करके, ओके। संकल्प करके मीन्स जो साधक बैठता है कार्य करने वाला, वो पहले बता देता है कि मैं इसलिए कर रहा हूं। आप देखिए जब भी आप कोई काम करवाइए, कोई पूजा करवाइए, तो उसमें आपको शुरू में वो संकल्प करना पड़ता है कि आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर दिस। जैसे भगवान दशरथ ने पुत्रेष्ठि यज्ञ किया, उन्होंने यज्ञ किया, लेकिन उन्होंने किया संकल्प करके कि इस यज्ञ के फलस्वरूप मेरे 4 पुत्र हो, तो वो उनको फल मिला। अगर किसी दूसरे ने यज्ञ किया किसी फल की कामना के बिना, वो है त्याग कर्म, वो है कर्म त्याग। और अगर फल मिल भी जाए तो उस फल भी मिल जाए उसे कुछ नहीं, विरक्त रहना, ये संन्यास भाव है। या नहीं, अगर फल मिले तो उसको जो भगवान की इच्छा से अनुसार उसको स्वीकार, प्रसाद के स्वरूप में उसको स्वीकार कर ले। हाँ, लेकिन अगर फल मिला आप उससे खुश हो गए, आपने वो मनाई, तो वो आ गया, मतलब उसमें आपको फल मिल गया, लेकिन आपको ना तो उससे खुशी हो रही ना दुखी हो रही, ना दुख हो रहा है। तो बड़ी ऊंची स्टेज है साहब, बड़ी ऊंची स्टेज है। हाँ, तो ये तो बता रहे हैं त्याग के बारे में। वही ऊंची स्टेज ही करनी है ये हमने, नीचे तो रहना ही नहीं। राज जी क्या कह रहे? नहीं, प्रश्न ये है कि कुछ आप कर रहे हैं, चाहे संकल्प करें या मत करें, आपको ही पता तो नहीं लगेगा, फल तो मिलेगा ही, लेकिन उसके कारण मिला है फल, ये थोड़ी पता लगेगा। राजू इसमें एक चीज और भी है कि जो फल मिलता है ना, तो फल का जो समय अनिश्चित है। ऐसा नहीं कि आपने किया और तुरंत फल मिल गया। फल भगवान की इच्छा से जब होगा तब मिलेगा। गीता के 18 अध्याय में बताया है उन्होंने कि ये जो फल है ये निश्चित काल नहीं है, जरूर फल जरूर मिलेगा, पर कब मिलेगा ये मेरी इच्छा पर है। When I give it to you, then give it. ना, उसमें जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन, जो हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में कर्म करते हैं, उनका है कि कब उसका फल मिलेगा। लेकिन जो शास्त्र में जो कर्म बताए, जैसे यज्ञ है, बहुत तरह के यज्ञ हैं, पुत्रेष्ठ यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, वो डिफरेंट पर्पस के लिए किए जाते हैं, उसमें पर्पस पता है या, तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरह विधि से संकल्प करके और अपना इंटेंट बता के कि मैं कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं ये कर्म, तो वो तो फल का इच्छा हो गई इसके अंदर। जैसे मान लो दशरथ ने यज्ञ किया, करवाया, तो उसमें उन्होंने पुत्र की 4 पुत्रों को मांगा, तो उसमें उन्होंने फल पहले से ही कि मुझे फल मिलना चाहिए, आई वांट दिस वन,
इसमें ऐसे ही बनाया गया पुत्र चाहिए मुझे। हाँ, तो वो उसके लिए एक स्पेशल, ये सारे यज्ञ होते हैं, वो स्पेशल यज्ञ था सिर्फ पुत्र की प्राप्ति के लिए, और उनका हो गया, उनको फल उसको मिल गया। तो वो यहाँ पे कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि आप इस तरह के मत कीजिए कर्म। आप जो है, अभी आगे में आएगा कि सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म है उसको कीजिए, ना तो कोई आप यज्ञ छोड़िए करना, ना कोई आप दान करना छोड़िए। दान करते हैं ना, उसके बावजूद उसका फल मिलता है। लेकिन यहाँ जो है, अब अगला पढ़ेंगे तो उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसमें एक बात और भी है, जो शास्त्रों के अनुसार जो यज्ञ विधान किए जाते हैं, हाँ, वो तो माननीय होंगे। क्या होंगे? जो शास्त्रों के अनुसार, जैसे पुत्र कामेष्टि का यज्ञ किया, हाँ, वो वेदों में पूरा है, उसका पूरा वेदों से किया हुआ है, तो हाँ, उसमें तो कोई चिंता की बात है ही नहीं। देन यू आर डूइंग इट इन ए प्रॉपर वे, और एक पूरी अच्छी प्रकार से कर रहे हैं, तो उसमें तो फल की, उसमें कोई त्याग का सवाल नहीं आता है इसके अंदर। नहीं, हम तो यहाँ पर ये संन्यास और त्याग के ऊपर ही विचार कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो चल सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं? ये जो अपना त्याग की बात कर रहे हैं ना, विच इज संन्यास की बात कर रहा हूँ, सॉरी। संन्यास जो है, just to sustain yourself. I mean, you cannot sit there and close your eyes and everything will come to you. I know great seers have that ability, but for a layman like me, they have to take action. Okay, I need food, I need this, water, and so on, to have the basic needs of life. So that action is not going to be abandoned. You have to do that. No, And if you can't find food, you have to go and look for it. no, it's provided for. Since we were talking about phal, let's take a scenario. This I'm talking guy, about sannyas. I'm talking about sannyas. yeah, I'm talking about sannyas. Yeah, So okay. this guy just took sannyas, and his Guruji said, okay, you go on your way. This is the principle of sannyas. You are in a renounced order. You renounce everything. You renounce desire of material things, which is says here, right? So he says, okay, everything is material. I renounce, but you have to sustain your body also, the Guru told, because that's what your body is here for, and then you operate in there. भगवान का ध्यान करने के लिए तुमको body चाहिए. The guy goes, and now he's hungry, and he's sitting under an apple tree. Okay, the apple falls. He looks at the apple. He says, yeah, I'm hungry. I should eat apple. Then there are like whole bunch of apple falls. So he says, okay, fine. So he picks up one apple. He eats. Uski bhook mit gayi. He is not going to get his chadar out and collect all those 20 apples that fell and take it for next time. That is what sannyas is. And then he resists that temptation of collection. You know, aparigraha Right. comes in I there. understand. Then he goes further down, and then the stream is flowing, and then he gets his water from there, and he's happy. Uski प्यास भी बुझ गई. आपने कहा भूख प्यास हो गया काम उसका, and he is happy. He is staying, and they are doing that in Himalaya. But depend in the forest. You don't. Every forest does not sustain everything. Let's say you're living in Sahara Desert. All right. I'm talking even a practicality. It's very hard not to be able to be attached to your existence. That's what I'm leading to that part. It's very essential. I think it's a dharma to make sure whether you're sannyasi or not, you have to sustain yourself. That's what I'm getting to basically. कि यहाँ पर हम लोगों की जो लाइफ है उसकी बात नहीं करी जा रही है, वो बात करी जा रही है जो प्रॉपरली they accept the order of sannyas. Okay. और ऑर्डर ऑफ संन्यास में जो हमारी जो व्यवस्था थी, समाज व्यवस्था थी, उसमें ये था कि गृहस्थ जो हैं they will sustain. टू, जो ब्रह्मचारी हैं उनको सस्टेन करेंगे, और जो सन्यासी हैं उनको सस्टेन करेंगे. Okay, so this was their duty. Now, so that is the support system. Yeah, that's the support system. Now सन्यासी जिसने सन्यास ले रखा है, he is expect to beg. Okay, और begging में
क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, अगले श्लोक में सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये एक सेकंड, मतलब तो ये बात फर्क समझ में आएगा कि ना, हम लोगों की सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट है। बिकॉज ना तो हम यज्ञ कर रहे हैं, ना कोई हम दान और तप, हम हमारे लिए, हमारी कंडीशन के लिए जो है वो जितना भी आप इसको अडाप्ट कर सकते हैं उतना करना, बाई उतना हम अडाप्ट कर सकते हैं। ये बात हो रही है उस टाइम की द्वापर युग में, जबकि सोशल ऑर्डर वाज देयर। देयर आर 4 एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ओके, जैसे पुरुषार्थ कहते हैं, उसमें है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये तो 4 वो हो गए एम ऑफ लाइफ। और इसमें जो है स्टेज ऑफ लाइफ कौन सी होती है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, ओके। सो इस तरह से थी, तो दैट वाज ए द सेटअप देयर, उसमें ये सब चीजें काम करती थी। तो कृष्ण भगवान बता रहे हैं उस टाइम की कि जो सन्यासी के लिए भी ये जो विहित कर्म है वो करते रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं, ओके। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो त्याज्यम दोषम वदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। Some learned people declare that all kind of action should be given up as evil, while other maintains that act of sacrifice, charity and penance should never be abandoned. So it's quite clear, इसमें कहते हैं कि कुछ जो विद्वान लोग कहते हैं कि सारे कर्म जो हैं वो छोड़ देने चाहिए सन्यासी के लिए, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि यज्ञ, सैक्रिफाइस, चैरिटी और फाइनेंस शुड नेवर बी अबंडन। इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इनको करते रहना चाहिए निष्काम भाव से। यहाँ पर मुझे इसमें एक चीज याद आती है सेन जी, हाँ, कि ये जो शंकराचार्य हैं, हाँ, के पूरी के, उनको बताया कि सन्यास के लिए उनके लिए जो शंकराचार्य को रखने के लिए उनको 4 बार स्नान करना पड़ता है, एंड यू डू सो मेनी थिंग एवरी डे, एंड इसे उनको करना पड़ता है, उनके लिए वो काम में कर्म है। He must do all those things, you know. Yes. And then he does what is needed. So भाषण भी दें, सब कुछ करते हैं, पर उनको ये बहुत जो उनकी विधि है उसको पूरा रोज करना पड़ता है उनको। हाँ, और सन्यास है, पक्के सन्यासी है उनके पूरे। हाँ, सन्यासी है। और उस टाइम ज्यादातर लोग, अब तो बहुत मुश्किल से लोग, कितने, अगर एक पॉपुलेशन रैंडम सैंपल ले लीजिए 1000 पीपल, उसमें कितने लोग सन्यासी बनते होंगे? कोई नहीं होगा। 1 लाख में शायद 1 हो जाए। 1 लाख में। तो वो लोग अभी भी जो वर्ण व्यवस्था और क्या कहते हैं आश्रम व्यवस्था है, वो लोग उसमें अभी भी हैं, लेकिन बहुत कम हो गए हैं। और अब कलयुग में तो बताएंगे जो भगवान की तरफ शरण, उनकी भक्ति, उनका नाम, ये है सबसे बड़ी चीज। अभी आगे आएगा। पर वैसे जो भीख मांगने वाले वो तो सन्यासी तो बहुत हैं इंडिया में। नहीं, ऐसा है ना कि एक है ना, भीख मांगने वालों का एक ग्रुप है, उनको देसे पुश्तैनी काम चला रहा है। अच्छा, सुबह उठकर गांव के अंदर अपना सजा के वो भीख मांगने जाते हैं। देखिए, भीख मांगने वाले वो डिफरेंट कैटेगरी में, जैसे सुदामा था ना, सुदामा गृहस्थ था, वो भीख मांगता था, ओके। सुदामा थे, इनका तो प्रोफेशन है इन लोगों का। अच्छा, तो वो भीख मांगना दूसरा है और सन्यासी का भीख मांगना दूसरे तरीके का है। वो सन्यासी नहीं है, वो लोग गृहस्थ है। नो, हाँ, चलिए, ओके, पढ़ते हैं चौथा। निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सप्तमम त्यागो ही पुरुषव्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तता। Now hear my conclusion on the subject of renunciation. O tiger among men, for renunciation have been declared to be 3 kinds. अब ये बता रहे हैं कृष्ण भगवान की जो
त्याग जो है वो 3 तरीके का होता है। वही 3 किस तरीके का होता है? 3 प्रकृति के गुण हैं, सत्य, रज और तम। तो त्याग एक तो सात्विक त्याग है, एक राजसिक त्याग है, एक तामसिक त्याग है, जिसके बारे में कृष्ण भगवान अभी बताएंगे। अत्यंत इसके एक शब्द का अर्थ ये नहीं मालूम होता है। सत्वम का अर्थ है भरत सत्वम। ओके, भरत सत्वम हाँ, का अर्थ क्या? भरत सत्वम मीन्स इसमें सत्वम भरत तो पूरे जो भरत तो पूरे सत्य और तम से बने हुए। इसमें लिखा है ट्रांसलेशन बेस्ट ऑफ भारत, भारत, बेस्ट ऑफ भारत, भारतस, या सबसे उत्तम, सबसे उत्तम, सबसे उत्तम पुरुष। और दूसरी जगह पुरुष व्याघ्र भी किया है, मतलब 2 शब्द किए हैं कृष्ण भगवान ने उसके कृष्ण अर्जुन के लिए, भरत सत्तमम और पुरुष व्याघ्र। भगवान ने अर्जुन की बहुत तारीफ करी है, बहुत नए नए शब्द लिखे दिखाए हैं उसके लिए। हाँ, सबसे बड़ा प्यारा है कि तू मेरा बहुत प्यारा शिष्य है, बार बार कहते हैं भगवान। या यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। इसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि सैक्रिफाइस, दान और तप ये कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, वो हमेशा इनको परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि जो द एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड पेनांस आर प्योरिफाइंग इवन फॉर दोज हु आर वाइज। ये जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्लीनिंग प्रोसेस। इनको छोड़ दिया तब वहां से फिर गंदगी चालू हो जाती है। सर मुझे जैन जी, मैंने बहुत दिन बाद ये जो इनका ये जो ब्रह्मसूत्र पढ़ना शुरू किया मैंने, हाँ। तो उसमें देखा पहले में कि जितनी गीता की सारी बातें हैं एक के बाद सब उसमें भरी हुई है, एवरीथिंग। सो आई वाज सो एस्टोनिश्ड। मैंने बहुत दिन बाद पढ़ा, मैंने नोट्स भी बनाए थे, पर मैं देख कर फिर अच्छा लगा कि तो सारी की बात जो हम पढ़ रहे हैं वो ब्रह्मसूत्र ही पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, अलग थोड़ी है। एतान्यप तु कर्माणि संगम तथा फलानि च कर्तव्यानि में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। These activities must be performed without attachment and expectation for rewards. This is definite and supreme verdict. अब यहाँ बता रहे हैं कि बहुत से तो मत हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं तुझे बताता हूँ कि ये सब जो एक्टिविटीज हैं, दान, यज्ञ और तप की, इनको करना चाहिए विदाउट अटैचमेंट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड। दिस इज द मोस्ट डेफिनेट verdict I am giving you. So ठीक है। तो फिर 10 वो कैसे अपने को इतना लड़का चाहिए करके प्रे करता है, यज्ञ करता है? एक्सपेक्टेशन से कौन करता है? अभी बोला ना, एक्सपेक्टेशन से यज्ञ किया ना कि मुझे लड़का चाहिए करके। हाँ, वो पहले ही श्लोक, हाँ, दशरथ ने उसमें एग्जाम्पल दी थी, मैंने एग्जाम्पल दी थी, वो था कर्म, फल की आशा से कर्म किया। तो उसने फल की आशा से किया ना, उसने कि 4 लड़के चाहिए करके यज्ञ किया। हाँ, उसने फल की आशा से किया था। तो फिर ऐसे बोलते हैं कि फल की आशा मत रखो। हाँ, वो बता रहे हैं, तो वो उसको अच्छा काम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने फल की आशा से किया, फिर उनको क्या मिला? देखिए ना, मुसीबत ही तो मिली। नहीं, मुसीबत तो नहीं मिली इनको। दशरथ जी का कितना दुख हुआ। नहीं, दशरथ जी को मिला, बहुत आनंद पूर्वक बनाए उन्होंने सारे दिन। जो उनकी जो उनका जो प्रारब्ध था, उनको वो ले गया उसके अंदर। अब आप कुछ भी कर लीजिए, मतलब वो मेरे ख्याल में ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उनको करने में शास्त्र की शास्त्रोक्त करने के लिए उसमें कोई आई थिंक कोई विरोध की बात नहीं है। विरोध की कौन बता रहे हैं? हम सिर्फ जो गीता का जैसा है वैसा बता रहे हैं। कृष्ण में बता रहे हैं कि जो भी काम किया जाता है उसी आशा से, उसको अब तक इस अध्याय में बताया है, 6ठे अध्याय में बताया है, पूरी गीता में ही बताया है।
और त्याग का हमेशा ये बिना फल की आसक्ता है ही नहीं बिल्कुल हाँ, उसमें। तो हमने एग्जाम्पल दे दी थी दशरथ की, लेकिन वो सब भगवान की लीलाएं हैं। हमको उसमें नहीं करना चाहिए। वो एग्जाम्पल भी मैंने ठीक नहीं दी थी, लेकिन हम आजकल के जमाने में लोग पूजा करवाते हैं, हम इसलिए पूजा करवा रहे हैं क्योंकि हमको प्रमोशन मिल जाए, हमको ये हो जाए वो हो जाए, तो वो है हमेशा विद द एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर हम लोगों के लेवल पे, दशरथ के लेवल, महाराज दशरथ जी का लेवल छोड़ दीजिए, हम असल लोगों में के लेवल। दो चीजें इसके अंदर, हाँ, एक तो कर्म फल और दूसरा, देखिए ऐसा है, मान लीजिए उन्होंने कर्म अपने के लिए किया, जब पूजा कराई उन्होंने बहुत से लोगों को बुलाया और पूजा में उनको सबको सम्मिलित किया उनको, तो वो पूजा का एक तो अर्थ ये है कि पूजा से कभी कोई हानि नहीं होती है, फल तो मिलेगा उनको, फल की आ गए, पर उसके पूजा साथ अलग साथ है, कुछ काम किया। पूजा अलग है, पूजा अलग चीज है, यज्ञ अलग चीज है। यज्ञ और दूसरी क्रिया है। पूजा तो, पूजा जब आप अपने घर में कराते हैं तो किस लिए कराते हैं? पूजा तो बस पूजा के लिए कराते हैं, भगवान की आराधना के लिए, और घर की शुद्धि के लिए कराते हैं। हाँ, घर की शुद्धि के लिए, कुछ सारी चीजों के लिए कराते हैं। लेकिन कुछ लोगों चलिए, के दिल में रहता है कि कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए। चलिए साथ में चलते हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात् मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परकीर्तिता। अब आया उन्होंने तामस त्याग क्या है, द त्याग इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। Prescribed duty should never be renounced. Such deluded renunciation is said to be in the mode of ignorance. अब जो हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी थी उनको भी छोड़ दिया, दिस इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये तो सब पता ही है कि जो काम करना है और ना करें वो तो है ही इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं 8वें में, राजसी त्याग। दुखम इत्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत सा कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम भवे। To give up prescribed duties because they are troublesome or cause bodily discomfort is renunciation in the mode of passion. Such renunciation is never beneficial or elevating. अब छोड़ दिया काम करना इसलिए कि बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या करें, यहाँ दर्द हो रहा है, ये है वो है, बहाना बना के काम नहीं किया, वो है इन द मोड ऑफ पैशन, राजसिक। ये होता है कि चलो करना है, लेकिन अब क्या करें, जरा आलस आ रहा है, नहीं करते। मुझे एक चीज समझ नहीं आई इसमें, राजस के मान नहीं है कि राज का शब्द ऑल्सो लाइक ए रूलिंग, यू नो, अभी मैं समझता हूँ तम रज सबको, पर राजस के शब्द के अंदर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लाइक ए अथॉरिटी टाइप, राजा से राजस नहीं बना है। आई कैनॉट से, आई डू नॉट नो, अगर आप ऐसा सोचते हैं, मुझे तो नहीं लगता है। रज, सत रज तम, ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। गिव्स अप। देखिए संस्कृत में ऐसा होता है कि एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं, और कई मीनिंग के लिए एक शब्द होता है। अब जैसे गुण है, गुण गुण दो तरीके से होता है, एक तो क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स, और दूसरा गुण होता है स्ट्रैंड, जैसे रस्सी में होता है ना वो। अच्छा, तो 8वें में चले ना, यदि राजस हो गया ना, तामसिक तो हो गया कि मतलब करना, काम करना है लेकिन हम नहीं करेंगे, कोई रीजन नहीं करना है। और राजसिक में है, उसमें रीजन देते हैं, भाई मैं थक गया हूँ, मैं क्या कहते हैं, बड़ा बॉडी में प्रॉब्लम होगी, बड़ी डिफिकल्टी है, कौन करे, वो राजसिक है।
या एक तरह से तो उसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि राजसिक, जैसे आपने कहा ना कि या इट डिनोट्स कंट्रोल, सो ऑफ कोर्स द पर्सन हैज द कंट्रोल, but the person kind of abuses that control to say, oh ठीक है, मैं कंट्रोल तो कर सकता हूँ, मैंने नहीं करना, राइट, मेरी मर्जी है। तो दैट्स राजसिक। तीसरा जो इग्नोरेंस वाला था, उसमें राजसिक वाला कुछ भी नहीं आया, वो तो बिल्कुल ही नहीं करना है, नहीं करना है, बस नहीं करना, नहीं करना है, बस जिद में पड़ गया वो तो। ऐसा नहीं, मैंने वैसे नहीं करना। practical things we see each day, ये Yeah, बिल्कुल देखते हैं आप इन चीजों को, yeah, ये बिल्कुल पूरी एवरीथिंग इज हैपनिंग एवरी टाइम। yeah. एक बात मैं बता दूं, ये जो राजसिक में बताया है ना, वो उसके लिए है जो फिजिकली फिट है, ओके, वो कर रहा है। लेकिन जैसे Thank you. एज बढ़ती चली जाए ना, तो जब आपकी एज बढ़ जाती है तो बॉडी की जो है कैपेसिटी कम हो जाती है। उसके बाद जो आप करते थे यंग एज पे, वो आप नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाते। Yeah, हाँ, नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप वो करना छोड़ दें, तो आई डोंट थिंक वो राजसिक और तामसिक में नहीं आता है, वो जस्ट नेचुरल है। yeah. Thank you. जैसे I was going to ask you that question. You've answered it already. Yeah, he answered it already. Good. या Okay. पर फिर भी जितना कर सकते उतना करना चाहिए। Yeah. हाँ, जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और इसमें ये है कि लेकिन डोंट, खैर अगर आप ज्यादा भी कर जाएंगे अपनी सामर्थ्य से, तो भगवान आपको देखेंगे। अगर मैं सामने के बाहर एकदम तो आपको क्लेश मिलेगा। क्या करेंगे? एकदम समझ में नहीं आ रहा है ये। सामर्थ्य के बाद लगता तो सरल है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तामसिक, राजसिक और अभी सात्विक तो आया नहीं है, तामसिक और राजसिक में क्या फर्क है? तामसिक तो ये तामसिक तो उसको कोई रीजन नहीं है, ओके, ही हैज नो रीजन टू नॉट टू डू। बस हम, मुझे नहीं करना है, वो सोचेगा भी नहीं क्यों नहीं करना है। राजसिक में है, वो अपने को सेटिस्फाई करेगा कि अरे इसमें तो बड़ी मुसीबत है, कौन अब जाए मंदिर, इट्स लेट, और वहां पर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है वहां पे। तो इस तरह की जो बहानेबाजी करके ना, अपने को जानते हुए बहानेबाजी करके छोड़ दे, वो राजसिक है। और तामसिक तो है, वो उसको कुछ नहीं, वो बहाना भी नहीं चाहिए उसको, मुझे बस नहीं करना है। अच्छा, जो करना चाहिए वो नहीं किया, वो तामसिक हो गया। हाँ, और जो छोड़, हाँ, जो ये सोच के छोड़ता है कि यहाँ पे अड़चन है, बहुत सारी अड़चन है। हाँ, तो अच्छा, तो ये तो सात्विक का क्या बताया आपने? सात्विक का भी आया नहीं। अच्छा, अभी सात्विक आएगा, ठीक है। सात्विक का नहीं आया। जितेंद्र, ये तामसिक का जो श्लोक है ना, उसमें मोहातस्य शब्द हाँ, है। मोहातस में डिल्यूडेड, ही इज डिल्यूडेड, अंडर डिल्यूजन। या अंडर द डिल्यूजन और इल्यूजन। या अंडर डिल्यूजन तो ये सोचेगा कि अरे क्या फायदा इसको करने से, बेकार है। ये अंडर डिल्यूजन, इसलिए छोड़ता है। अच्छा, राजसिक में है, उसको पता है कि मुझे करना है, लेकिन या उसको पता है उसको करना है उसका। हाँ, पर उषा जी क्या और तामसिक वाला इज नॉट कन्विंस्ड कि मेरे को करना है। ठीक है, उषा जी। तामसिक वाले तो कहते हैं हम मानते ही नहीं है, करके हाँ, ये करना भी क्या है। है, किसी ने भगवान को देखा वो ये बात करेंगे। और हाँ, जो राजसिक वाला होगा, वो कभी कर भी लेगा और कभी उसको आलस आएगा तो छोड़ भी देगा, तो वो मिक्स काइंड का होगा। तो निचोड़ तो यही निकला कि जो सन्यास है, गृहस्थ में रहकर भी सन्यास इंसान कर सकता है, अब जबकि उसकी डिजायरों के ऊपर ऊपर ना चले, डिजायरों को कंट्रोल करके अपना जो धर्म है वो मनाता रहे जितना हो सके। और जो त्याग है, त्याग का फल का तू अपना काम करी चल, फल मिले ना मिले, मिल गए तब भी अच्छा, ना मिले तब भी अच्छा, तो उस प्रभु पे छोड़ दे। मेरे को तो ये समझ आई है आज तक, निचोड़ तो यही निकला है। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपकी समझ। दैट्स एग्री, ये बहुत अच्छा आपने समझा। रियली दैट्स कुछ नहीं है, मैंने गीता वीता नहीं पढ़ती बहुत ही ज्यादा, हुआ तो कुछ नहीं पता। नहीं, अगर आप करते ही चले तब भी तामसिक और वो तो तीनों गुण तो उसमें भी अप्लाई होंगे। यस, हाँ, एग्जैक्टली। वो कोई भी प्रकृति में सारे में है तीनों गुण। इसीलिए तो जो देखिए,
कैसे बताया जाए, गुण है, मतलब आपको क्या इसमें व्हाट इज द क्वेश्चन? प्रकृति के किसी काम में भी तीनों गुण हैं, मतलब व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्या मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, ये आपसे नहीं, उषा जी ने जैसे किया नहीं कि अपना कर्म किए जा, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें भी अगर आप सत्व लाना चाहते हैं तो आपको कुछ कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। इसीलिए तो उससे पहले जो भगवत गीता हम पढ़ चुके हैं, एक जगह पर मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि पहले भगवान जी ने ये भी कहा है कि संन्यास का मतलब ये नहीं कि जो फायर ना जलाता हो, जो योगिया कपड़े पहनता हो, जो ये करता हो वो करता हो, राइट। और ये भी कहा है कि जब तुमने सारे के सारे डिजायर्स छोड़ दिए, अटैचमेंट छोड़ दिए, तो वो तुम्हारा संन्यास हो गया। और वैसे संन्यास के बाद तुम्हें करने के लिए और कुछ नहीं रह जाता। आप देखिए बहुत अच्छा आपने कहा है। चैप्टर 6 का पहला श्लोक है, वो है अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सा सन्यासी चा योगी न चा निरग्निर चा क्रिया। मतलब उसमें है भगवान का जो पुरुष कर्म फल में अनासक्त रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता वही सच्चा सन्यासी योगी है, अग्नि को त्यागने वाला नहीं, अथवा कर्म को त्यागने वाला सन्यासी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे मैंने संकल्प की बात बताई थी ना, तो उसका बताते हैं यम संन्यासम इत राहुल योगम तम विद्ध पांडव नहीं असन्यस्त असंकल्पो योगो भवत कश्चना। जिसको संन्यास कहते हैं वही योग है, क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ पे संन्यास संकल्प बताया है, ना ही संकल्प में, संकल्प का मतलब होता है जो अपना इंटेंशन के साथ करे ना, अपनी तृप्ति के लिए, उसको कहते हैं संकल्प। जब तक आप संकल्प नहीं छोड़ते हैं वो योग नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ भी बताया है। और थर्ड उसमें भी बताया है जब कृष्ण भगवान ने, जबकि अर्जुन ने कहा था कि व्याम श्रेय वाक्य, दो बातें बोल रहे हैं आप, कि कभी शांति की बात कहते हैं तो कभी योग की बात कहते हैं। तब फिर यही बात बताई थी। तो थ्री चैप्टर्स में कृष्ण भगवान ने इसको क्लियर किया। अच्छा, अब ये देखिए कार्यम इत्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्ता फलम चैव सा त्यागः सात्विको मतः। When action are taken in response to duty, O Arjun, and one relinquishes attachment to any reward, it is considered renunciation in the nature of goodness. अब यहाँ पे बताया attachment to the reward, यानी इसका मतलब अगर आपको रिवार्ड मिल भी जाए उसका, तब भी आपका कोई अटैचमेंट नहीं था उसके साथ, वही अनासक्त। या हाँ, तो ये है that renunciation is in the nature of goodness. अभी तो पहले कह रहे थे ना ओम जी के, वो उसका तो मिलेगा ही, रिवॉर्ड तो मिलेगा, फल मिलेगा, तो बस उसका ये है कि उसको अनासक्त रहना है। अनासक्त, हाँ, वो अपने शरीर का भरण पोषण तो करना है, पर वही जो अगर 20 एप्पल गिर गए तो उसमें से 1-2 से पेट भरता है, खा के आगे चल सन्यासी, अपने उसका इकट्ठे नहीं करना। हाँ, ये ऐसा था, जो हम बचपन में थे तो अमरूद के बाग में जाते थे, तो अच्छा था बेचारा वो अमरूद का, वो कहता था तुम खा लो, मतलब एक आध, लेकिन ये नहीं तुम बटोर के ले जाओ। सही बात है। हाँ। ये तो यहाँ भी एप्पल ऑर्चर्ड में, सॉरी उषा जी आप अपना अनम्यूट करिए। अनम्यूट, आप म्यूट हैं उषा जी, आप म्यूट हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये त्याग में आएगा क्या संन्यास में आएगा? जब कभी तुम पूजा ठान लेते हो कि मैंने करनी है, और आप व्रत जैसे रखते हो तो भूख
उस समय अपने आप ही लगती नहीं है, सारा दिन मन को मनाया होता है कि भी तुमने आज व्रत रखा है, नहीं खाना। तो कई बार ऐसा भी मैंने नोट किया है कि जब आप पूजा अपने मन में ठान लें, उस दिन आपको ये भूख भी जो तेरी है ना, वो उसी टाइम नहीं लगेगी। भूख को भी आप अपने कंट्रोल में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये किस में आएगा? त्याग में आएगा, संन्यास में आएगा, किस में आएगा? में संन्यास त्याग के अंदर कोई खास फर्क नहीं है। यानी पूरी अगर उसको बारीकी से देखा जाए। या ओके ओम जी, ठहर एक मिनट जरा। ओके ठीक है, यतेंद्र जी क्या कह रहे हैं इसके बारे कि संन्यास में आएगा कि त्याग में आएगा या कि दोनों में आएगा? ये तो किसी में भी नहीं आएगा। यस ओके, किसी में भी नहीं आएगा, राइट, बिकॉज यहाँ इंटेंशन की बात चल रही है। हाँ, आपने उससे किस आप क्या intention- चाहते क्या हैं उसमें, डिजायर आपको, आपने उसमें कुछ, आपका कुछ फल अभिष्ट उसमें है, उसमें आपने कुछ किया हुआ है संकल्प कि हाँ मुझे ये इसमें से चाहिए या नहीं चाहिए? बात तो सारी संकल्प की चल रही है कि मुझे इसमें से कुछ चाहिए मटेरियली या नहीं चाहिए। एवरीथिंग एल्स इज मटेरियल एक्सेप्ट द सोल। सो देख लीजिए उसी के हिसाब से आपका क्या उसके प्रति बिहेवियर है, उसी के हिसाब से आप उसको जांच लीजिए कि वैसे संन्यास में आ रहा है कि उसमें त्याग में आ रहा है कि किसी में से भी नहीं आ रहा। कि ये जस्ट मेरा प्यूरिफिकेटरी एक्शन है, मैं अपनी बॉडी को प्यूरिफिकेट कर रही हूँ, मन को प्यूरिफाई कर रही हूँ। तो उसी एक्शन के समझ लीजिए, इट्स एन एक्शन मेरे ख्याल से। तो संन्यास त्याग में नहीं, इसकी जरूरत नहीं है वहां पर। अगर आप उसको वैसा समझना चाहती हैं, you are welcome, you can, but you know it's not necessary उसको के सन्यासी को भूखा रह के ही करना है या त्यागी को भूखा रह के ही त्याग करना है। त्याग वो तो कह रहे हैं, पहले कई अध्यायों में कहा कि अपनी बॉडी को तकलीफ दे के ये करके वो करके मत करो, कोई जरूरत भी नहीं है। खाना है ज्यादा मत खाओ और बहुत थोड़ा भी मत खाओ, ये भी कहा हुआ है, ठीक है ना? मे बी प्यूरिफाई के लिए आप कह रहे होंगे, वो ठीक है, आई एग्री। मेरा तो कहने के ये भाव है कि कभी कभी आप अपने कभी यदि आप पूजा करते हो तो आपका भूख प्यास की भी चिंता नहीं रहती है, ये मेरे कहने का मतलब। ठीक है, नहीं वो तो अच्छी बात है। मुझे तो लगती थी, मैं जब व्रत रखता था ना तो मैं काम पे जाता था, तो व्रत वाला दिन होता था, कोई स्पेशल माइंड में की कई बार होता था कि हाँ बड़ी वो हो जाती थी कि भी हाँ शक्ति आ जाती थी, भूख नहीं लगी। फिर मैं घर आता था, मिसेज को बोलता था, ओ आज तो भूख ही नहीं लगी मैनू, मैं तो बहुत कंट्रोल कर लिया अपनी बॉडी। कहते आराम से खाना खाओ, तुम्हारा टाइम हो गया, यू नो। एक टाइम का व्रत होता था, तो जो भी सोमवार का वट एवर। तो पर कई बार भूख बहुत जबरदस्त लगती थी, फिर मैं अगली बार सोचता था यार ये तो काम करने भी मुश्किल हो गई, हेडेक हो गई, कुछ हो गया। सो अपनी वो परिस्थिति जो भी बनी होती है उसी के हिसाब से हो जाता है। जयंती जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ, मैं तो फिक्स आवर्स में 2 आवर्स नौकार मंत्र का चैंटिंग करती हूँ। संकल्प, दैट इज संकल्प के बिन ये किए बिन मैं क्या स्टॉप किए, डेली आई चैंट फॉर 2 आवर्स इन विच इट विल कम। और खाने का भी संकल्प रहता है मेरा सवेरे से कि 3 या 4 टाइम ही खाएगी, उसके बीच में मैं आई डोंट पुट एनीथिंग। दैट इज ऑल्सो संकल्प। इन व्हाट इट विल गो। नो, संकल्प क्या है उसके पीछे कारण क्या है आपका? अब डिजाइन कुछ नहीं, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ तो फिर तो अगर मजाक में, हमारे गुरु है ना, गीता क्लास लेते, मजाक में मैंने बोला मैंने इतना करती हूँ तो भी भगवान मुझे जाने नहीं देता है, तो शी वॉज वेरी एंग्री। अच्छा संकल्प करना बुरा बात नहीं है, पूजा का तुम बोलते हो कि मैं करती हूँ, मगर मन में ये है ना तुमको, तो इन व्हाट आई डू, इन व्हाट इट विल कम। मन में ऐसा थोड़ा थोड़ा इच्छा रहता है कि जल्दी जाने को मिले। देखो संकल्प है संकल्प इनका। इसलिए मैं बोल के गई ना
इतना मैं करती हूँ फिर भी मुझे जाने नहीं मिल रहा है। तो वो क्या बोली कि गॉड इज ग्रेट कि बिकॉज यू आर डूइंग, ही इज थिंकिंग गुड अबाउट यू एंड नॉट अलाउइंग यू टू गो। एग्जैक्टली, दैट वाज हर आंसर। आई थिंक दैट्स राइट। अब देखिए, संकल्प की बात कर रहे थे ओम जी, तो जैसे कोई यज्ञ कराए, सूखा पड़ा हुआ है और वर्षा के लिए यज्ञ कराए संकल्प के साथ कि हे भगवान बारिश हो जाए, तो वो जो है बांधने वाला नहीं है, क्योंकि आपने दूसरे के लिए कराया, जन कल्याण के लिए कराया, संकल्प के साथ कराया, लेकिन जन कल्याण के लिए कराया ना, तो वो उस कैटेगरी के बाहर है संकल्प। वो संकल्प यहाँ पे जो 6th चैप्टर में बताया है वो सिर्फ अपनी वो भी कामना करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई अगर कोई बीमार पड़ा है या कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए अगर आप करवाएं तो वो भी मेरे ख्याल से तो उसमें नहीं आएगा, तो सैक्रिफाइस में आ जाएगा। सैक्रिफाइस जैसे माँ का संकल्प है, दे कॉल इट रेकी ना, दूसरे के लिए अपन कुछ प्रे करते हैं या कुल रेकी में इज मीनिंग ऑफ दैट मींस वही दूसरों के लिए जो प्रे करते हैं दैट इज कॉल्ड एज रेकी। रेकी कह लो, सैक्रिफाइस कह लो। एक्चुअली सॉरी, अभी अमिताभ बच्चन को जब बीमार पड़ा था तभी ऑल ओवर इंडिया सब यज्ञ चालू था ना, उसका पेरिटोनाइटिस हुआ था ना, उसने मारा था और ये किया था, तभी ऑल ओवर इंडिया इवन एवरीवेयर कितना यज्ञ कर रहे थे। तो दैट इज फॉर गुड ऑफ अदर्स, सो इट इज अच्छी बात है। अमिताभ बच्चन तो उनका भगवान है। एनीवेज विमला जी क्या कह रही? मैं ये कह रही थी, शी वाज सेइंग रेकी, आई सेड दैट इज द हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, एक सेकंड। कैन आई मीन मेनली and you can heal yourself, you can heal other, you can heal मगर यही है ना, प्रेयर तो distant करते हैं। We देखो keep यहाँ photo पे of somebody if he is sick and we always imagine he अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, that is Reiki. I have learned. चलो ठीक है, रेकी भी मान लेते हैं, उसको रेकी मान लेते हैं। तो वो कह रहा था कि सैक्रिफाइस में के अंडर आ जाएगा वो, सो विच इज पार्ट ऑफ दिस स्टडी हियर। वो कह रहे हैं कि सैक्रिफाइस इट इज सो ओके, ठीक है ना जितेंद्र जी? हाँ, या चलिए, ये तो हो गया 9th तक कर लिया हमने। 10th करते हैं। अब आया है दूसरा, मतलब ये तो हो गया ना द्वेष्ट अकुशलम कर्म कुशले नानुशच्यते त्यागी सत्य समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। Those who neither avoid disagreeable work nor seek more work because it is agreeable are person of true renunciation. They are endowed with quality of the mode of goodness and have no doubt about the nature of work. ट्रिकी है ये, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हाँ, ये सोचना पड़ेगा। ये एक तो है, ये है भी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें बताया है कि जो डिसएग्रीएबल और एग्रीएबल वर्क क्या है, इसी अभी इसका देखते हैं। ओके, प्रभुपाद ने तो एकदम इसका परपोर्ट ऐसे लिख दिया ना कि उसके डिवोटीज बिल्कुल ना नुकर नहीं कर सकते हैं, राइट? तो देखिए ना, उसने लिखा है ए पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और इन द मोड ऑफ गुडनेस डज नॉट हेट एनीवन और एनीथिंग व्हिच ट्रबल्स हिज बॉडी। ही डज वर्क इन द प्रॉपर प्लेस and at the proper time without fearing the troublesome effects of his duty. Such a person situated in transcendence should be understood to be most intelligent and beyond all doubts in his activities. So इसीलिए उसके चेले है ना, उनको बोलता है एयरपोर्ट चले जाओ, वहां जाके बुक्स डिस्ट्रीब्यूशंस करो, यहाँ करो वहां करो। चलो वो कर रहे हैं, वो लोग कई कहते हैं पीछे हट
वो बहुत बेइज्जती करते बहुत लोग तो उनको, पर वो लोग नहीं मानते, वो कहते कि कोई बात नहीं, हम तो यू नो आवर guru told us, don't worry, you are doing intelligent work here, you are renowned sir. Can I talk? ये देखो कैसा सेंटेंस है, सतो गुण में स्थित बुद्धिमान और त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, दिस आई डोंट लाइक। अगर अच्छा आदमी है तो अशुभ कर्म को घृणा करना ही चाहिए, एंड वी हैव टू इम्प्रूव ना। कोई अशुभ कर रहा है तो हाउ कैन यू। एक सेकंड, देखिए मैं बताता हूँ, इसकी एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोगों को अपनी एंड द लाइन ऑफ ड्यूटी कर्म करना पड़ता है जो कि अशुभ होता है। जैसे लाइन ऑफ ड्यूटी में सपोज कर लीजिए किसी हैंगमैन को लीथल इंजेक्शन लगाना है, द कन्विक्ट हु हैज बीन सेंटेंस्ड टू डेथ, अब वो डॉक्टर है, उसको लीथल इंजेक्शन लगाना है, उससे मर जाएगा, तो वो अशुभ कर्म नहीं है, वो अशुभ कर्म उस डॉक्टर के लिए नहीं। अंडरस्टूड, समझ यस। अच्छा, अब वो जो काम है उसको अशुभ कर्म उसके लिए है करने का, लेकिन उसको उसकी ड्यूटी है, लेकिन वो उससे मन हटाएगा नहीं, नहीं उसको असाइन ड्यूटी की है, नो 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 आई एम गोइंग टू गो एंड ट्रीट द पीपल, ओके, क्योंकि उसमें अच्छे काम है। तो इसी को बता रहे हैं कि जो कि अवॉइड्स, he does not avoid the disagreeable work nor work because it is agreeable. अपना काम छोड़ के दूसरे काम की तरफ नहीं भागना है बस। हमारे सिस्टम में लाइफ पे देख लीजिए, कुछ लोग जॉब पे होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं मैं ये एक्टिविटी नहीं करूंगा, मैं तो दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा ना। तो दिस ये एक हमारे स्टोरी आती है सदना कसाई की। वो कसाई होता है, पर he is supposed to be a spiritual person, very elevated in spiritual science, and स्टोरी आती है सदना की कसाई। हाँ वो है, हाँ। So he probably fits in this kind of scenario here, where he knows that is inauspicious work, but I am not supposed to hate any work. If that's the work I've been assigned and I am from that community, I am doing that work, it's okay, I'm doing, but मैं भगवान को याद रखूंगा। राज जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, हमने यहाँ एग्जाम्पल जो लिए हैं वो ऐसे कर्मों की हैं जो कि साधारण आदमी पसंद नहीं करेगा, तो लेकिन हमसे कहा जाता है, दूसरी तरफ हमसे कहा जाता है कि आप जो भी करें लव इट, एंजॉय इट। तो वो तो यहाँ फिट नहीं होता है कि होता है। ये कहाँ लिखा है लव एंड एंजॉय? ये सब लोग कहते हैं कि whatever you do, you should enjoy it. material sense में, material sense कहते हैं कि गीता में तो गीता तो उस काम को करने कहती है जो कि आपकी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी है, स्पिरिचुअल। लेकिन ब्रेन वॉश तो दुनिया कर, निरे आर्टिकल है इस पे, हजारों लाखों। वो कहते हैं कि whatever you do, you should love it, you should do it with a passion. You should like it at least. You should like it, you should do it with a passion. That's what you're saying. And then you will succeed in it. Okay. जैसे मेरा ले लीजिए example, I like music, I sing, I do play instruments and all that. But जैसे आप कहते हैं जो full success मिलती if I was doing it in a passion, with a passion, meaning I had to think about, okay, if my grihasthi is coming in its way, I got to leave my grihasthi and go do it. Okay, and the thought did pass my mind at some points, but I stuck to my grihasthi because I thought this is important, this is my duty over my interests, you know. So तो मैं अपने गाने बजाने की तो वो इच्छा जो वैसे ही पूरी कर लेता हूँ, आप लोगों के साथ ही कर लेता हूँ, तो which is good, but I couldn't become a musician or music director or anything which I was aspiring to become, but no, उसके लिए टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं, देखी जाएगी शायद। देखिए ये यहाँ पर जो ये
उदाहरण है, ये अर्जुन की भी समस्या थी, क्योंकि वो जो है ये जो क्या कहना चाहिए उसको, उसे मारना है, वो नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये बड़ा अप्रिय कार्य है। सही बात, सही बात, अप्रिय ही नहीं, घृणा, अगर आप घृणा कर सकते घृणा, सही तो बात, चाहे आप उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं भगवान। चाहे आप जल्लाद को ले लो, चाहे अर्जुन को ले लो, प्रॉब्लम वही है। You got it right, yeah. ये ठीक ही कह रहे हैं ना जितेंद्र जी, यहाँ पर अर्जुन के को इसी तरफ इशारा है कि तुम उससे घृणा कर रहे हो वार करने से, पर वो उसको वैसा मत समझो, घृणा मत करो, और उसको इनऑस्पिशियस लग रहा है तुम्हें, उसको हेट मत करो। रेफरेंस तो वही है। हाँ, वो मतलब जो जिस्ट है वो तो आपने पकड़ ली। या वो पकड़ ली, राज जी बहुत स्मार्ट बंदे हैं। Actually, it's a teaching for everyone. हम सबके लिए है, जो अर्जुन को वो बता रहे हैं। Yeah. And how we take it, I mean, that's our understanding. In our context, yes, that's up Yeah. to us. Yes, you're right. Yeah. ठीक है। अगला पढ़ते हैं 11वां। नाही देह भ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण श्रेष्ठा यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी इत अविधीते। For the embodied being, it is impossible to give up activities entirely, but those who relinquish the fruits of their action are said to be truly announced. ये जो सुरेंद्र जी बता रहे थे ना कि कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। हाँ, तो वो यहाँ पे बता दिया है कि जो जिसको बॉडी है उसको चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको आप इंटायरली नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन जो रिलिंक्विश, जो भी काम करें उसके फल को त्याग दें, वही त्यागी समझे जाते हैं। ठीक है यहाँ तक? ये तो पहले भी चैप्टर 4 से ही शुरू हो गया था, जो उसका कर्म की थ्योरी थी, उसी के साथ रिलेटेड हो गया। पहले ये तो कहा जा रहा था कि फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन त्याग शब्द ये पहली बार आया है कि पहले भी आ चुका है? नहीं, त्याग अभी आया है ज्यादा प्रिडोमिनेटली। और त्याग का यहाँ पे मतलब ये है कि कर्म फल त्याग, जो फल है उसको छोड़ना इस त्याग यहाँ पे। वैसे त्याग तो ये है जैसे आपने प्याज खाना छोड़ दिया, उसको भी त्याग कहते हैं, प्याज त्याग दिया। लेकिन वो यहाँ पे मतलब नहीं है। यतेंद्र जी ने आम खाना छोड़ दिया। मैंने नहीं तो नहीं वो देखा नहीं छोड़ सकते। I caught him there. नहीं, दीपक जी ये कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए तो छोड़ ही दिया। एक क्षण के लिए नहीं, वो एक क्षण के भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो भोग के मैं आम लगा के आया हूँ। उनके सबसे प्रिय वस्तु मैंने बता दी है। लेकिन मैंने शरीफा छोड़ रखा है। शरीफा में गया था, वो गया मैं कहीं कुछ ना, एक चीज छोड़नी पड़ती है आपको। गया मैं श्राद्ध कराने जाए ना, अच्छा, वो आपको पता है ना, वो उसे कहते हैं क्या सीताफल कहते हैं कुछ लोग उसको। सीताफल कहते हैं। उसमें जो गूसबेरी कुछ नहीं, क्या नाम उसका, बीज बहुत होते हैं, बीज कस्टर्ड फ्रूट, यहाँ उसको कस्टर्ड फ्रूट कहते हैं। यस। हाँ, तो वो सीताफल, रामफल, हाँ। वो यहाँ पर मिलता भी नहीं, तो आपने तो ऐसी चीज छोड़ दी कि वहाँ कनाडा मिलेगा तो है। मिलता है चाइनीज स्टोर में मिलता है और लाता हूँ जाता है। ऐसा भी तो कहते हैं कि जब जैसे दीक्षा में या उसमें वो कहते हैं कि आपकी प्रिय वस्तु क्या है वो छोड़नी पड़ेगी, ये भी तो कहते हैं। हाँ, तो वो प्रिय वस्तु मेरी। I mean, taste wise बहुत अच्छी है। If you eat it, you will like it. और एक चीज तो मतलब अपने आप छूट गया, मुझे जामुन नहीं खाने को बोले, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन यहाँ मिलते ही नहीं है। जो ताजा जामुन है ना, जामुन यहाँ मिलते नहीं है। बड़ा छोटा सीजन होता है इंडिया में, उस टाइम कभी जाने को नहीं मिलता। यहाँ जो फ्रोजन मिलते हैं उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। मेरी मिसेज के तो गांव में जामुन का पेड़ था, तो वो तो ऑलवेज
ऑलमोस्ट एवरी अदर डे जामुन जामुन याद करती रहती, जामुन यहाँ पर मिलता जामुन की बात सुन के अभी भी मेरे मुंह में वो टेस्ट आने लगा, उसका क्या कहूं। वो तो आपने जामुन खाया होगा, बाजार में जो बेचते हैं वो या अपने हांडी लोटे में में डाल या के। कुल्हड़ में या फिर मसाला डाल के वो ऐसे चला के। यस अब ज्यादा मत सताइए। फिर तो रिनंसिएशन तो अब लोग गड़बड़ आगे हो जाएगी। अभी तो रिनाउंसिएशन की बात चल रही है जिंदर जी। हाँ, तो ये अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगी ना या गड़बड़ हो रिनंसिएशन। तो देखिए माया जो है बीच में आ ही जाती है। आई जाती है। या अब देखिए चौथे पर चलते हैं, इसमें बता रहे हैं कि अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम करुणा फलम भवत्य त्यागना प्रेति न तु संन्यासिना कश्चित। 3 तरह के आपको फल मिल सकते हैं उसमें कर्म से। एक तो है जो आपके फेवर में हो, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट एंड मिक्स्ड, उसमें दोनों हो। इवन आफ्टर डेथ द थ्रीफोल्ड फ्रूट्स ऑफ एक्शन, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट एंड मिक्स्ड, accrue even after death to those who are attached to personal reward. But for those who renounce the fruits of their action, there are no such results in here or hereafter. तो यहाँ तो कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि आपने रिनाउंस कर दिया कर्म फल को आपने छोड़ दिया, तब ना तो यहाँ फल मिलेगा और ना उसके बाद फल मिलेगा। ये बात आई समझ में आपकी? मेरी मतलब आप सब लोगों को ये कोई भी एग्री नहीं कर रहा है इस बात के ऊपर कि आप अच्छा काम फल की आशा से ना करें और उसका फल आपको ना मिले। अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि भाई अगर फल जो भी मिल गया उससे बिल्कुल अनासक्त रह लो। यहाँ तो कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि उसको फल ही नहीं मिलेगा। तो हमको कृष्ण भगवान की बात माननी पड़ेगी। या माननी पड़ेगी मिलाना, तो फिर उसको भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो ये फल पूरे समाप्त हो जाते हैं ना, जैसे कि जब बीज भून जाता है ना तो वो उगता नहीं है, इसी प्रकार जब फल जो सारे कर्म सब बिल्कुल उनको फल नष्ट हो जाता है तो फिर आगे का कुछ काम अच्छा बुरा नहीं मिलता उसको भी। नहीं, वो तो फल नष्ट होने के बाद मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जिसने पर्सनल रिवार्ड को ध्यान में रखते हुए कर्म किया है उसको फल कोई मिलेगा ही नहीं। ठीक है। हाँ, तो ये है। मैं इसको 1 मिनट इंग्लिश में पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन। फॉर वन हु इज नॉट रिनाउंस्ड द थ्रीफोल्ड फ्रूट्स ऑफ एक्शन, desirable, undesirable and mixed, accrue after death. But those who are in the renounced order of life have no such result to suffer or enjoy. So ये उन्होंने अपने ये रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ की इसमें बात नहीं करी है। इसमें बता रहे हैं जिन्होंने रिनाउंस करा है फ्रूट्स ऑफ देयर एक्शंस। अब अगर वो प्रभुपाद अगर ये करना चाहते हैं तो उनके लिए ठीक है, क्योंकि he was living in a renounced order of life. सन्यासी नाम लिखा है for the renounced order. सन्यासी नाम for the renouncer of action. Renouncer of action. ये है सन्यासी नाम। अगर आप इसको संस्कृत ग्रामर के हिसाब से देखें, उसका मतलब है, उसका ये मतलब निकलता है फॉर द रिनाउंसर ऑफ एक्शन। सन्यासी नाम जरूरी नहीं है कि वो सन्यास का उसके लेबल लगा होना चाहिए, वो रिनाउंसर ऑफ एक्शन। ठीक है, ये है रिनाउंसर ऑफ एक्शन में, जैसे कहते हैं योगी नाम में कहते हैं कि योग के बीच में। तो सन्यासी नाम मीन्स जो रिनाउंसर है ऑफ द एक्शन। अब ओके, अब देखिए यहाँ तक ठीक है। 13 करते हैं। हाँ जी, हाँ, अब ये बहुत बढ़िया आया है यहाँ पे, जो फ्रॉम 13 जो है 13। हाँ, पंचतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कारण। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है
वो चेंज हो गया है 13 से। अब तक तो संन्यास और त्याग की बात हो रही थी, अब यहाँ पे एक दूसरे सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है। वो ये है कि जो काम होता है उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। जैसे कोई चीज हुई, जैसे सपोज कर लीजिए इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, तो उसके पीछे कितने फैक्टर्स हैं। या किसी को अनएक्सपेक्टेड जॉब मिल गया, मतलब वो बहुत कंपटीशन था लेकिन मिल गया, उसके बाद लोग कहते हैं ना आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, इसलिए मुझको मिल गया ना। तो ये बताया है कि राइट प्लेस एट द राइट टाइम कब होता है, और एट द राइट प्लेस एंड रॉन्ग टाइम आप कब हो सकते हैं, एंड रॉन्ग प्लेस एट द राइट टाइम, मतलब ये सब चीजें बताइए जिससे कि आपका काम हो ना सके या हो जाए। तो बहुत सी चीजें होती उसके पीछे होती हैं, लेकिन वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके कारण वो हो जाता है या नहीं होता है। असल में मैं अब आगे लेना चाहता हूँ। नमस्कार। ओके ओम जी, टेक केयर, ब्लेस यू। नमस्कार। नमस्कार, आपके स्वास्थ्य की कामनाएं, बहुत जल्दी आप। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, तो पांच कारण बताए हैं। 5 कारण कौन से हैं? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथक विधम विविधास पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचम। इसमें एक तो बताया है द अधिष्ठानम मीन प्लेस, एंड सेकंड चीज बताई द डूअर, कर्ता। तीसरी चीज बताई है वेरियस सेंसेस एंड टूल्स। ओके, चौथी चीज बताई है वे एफर्ट्स और डिवाइन प्रोविडेंस। इसके बावजूद भी एक जो है क्या कहते हैं एलिमेंट ऑफ लक है इन सब के बाद भी। तो आप देखिए जैसे बताते हैं ना राइट प्लेस। ओके, सो अधिष्ठानम है द प्लेस, और प्लेस कौन सी है यहाँ पर है ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी से जो काम हो रहा है ना। अच्छा, जो करण है मतलब टूल्स क्या है? टूल्स हैं आपके सेंसेस और आपकी कर्मेंद्रियां, वो टूल्स हैं। और उसमें उसके बाद फिर इन सब के द्वारा वी मेक ऑल काइंड ऑफ एफर्ट, और उस एफर्ट के बाद हमको सक्सेस जरूरी नहीं मिल जाए, सब चीजें आपने ठीक की हो लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है, तो वो उसका कारण है दैव। उसको कहते हैं दैव, दैवी कृपा कहते हैं ना, दैवी कृपा हो गई। दैव मीन्स दिस इज ए प्रोविडेंस, दिस चांस। अब इसकी एग्जाम्पल ले लीजिए कोई, जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस होके एक काम हो गया, तो इसमें there was a place, okay, which has to be liberated, and there are the doers, okay, महात्मा गांधी और नेहरू और जो सब ना वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सब लोग, एंड द पब्लिक एट लार्ज। और फिर इसके बाद आता है टूल्स। टूल्स हैं उनके, अगर अगर वो होती आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तो बंदूक और तोपें, मतलब दो अंग्रेजों से लड़ते तो वो टूल्स हो जाते, लेकिन इस केस में अहिंसा, वो सत्याग्रह वगैरह वो टूल्स थे, और उसमें तमाम तरह की एफर्ट। ओके, और उसके बाद द डिवाइन प्रोविडेंस। अब वो डिवाइन प्रोविडेंस ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होके चुकी थी और ब्रिटेन था वो फटेहाल हो गया था बिल्कुल, उसके पास वो नहीं थी कि वो अपनी कॉलोनी कर पाए ना। अगर जब ब्रिटेन पावर में था तो आप कितने भी सत्याग्रह वगैरह करते रहिए, कुछ नहीं होकर देता, लेकिन उस टाइम कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उनको इसके अलावा कोई चारा नहीं था। तब उसके बाद जो डिवाइन प्रोविडेंस था उसके कारण, उसका भी कारण ये हुआ। तो इस तरीके, ये तो मैंने वैसे एग्जांपल दी है, क्या कहते हैं, आउट ऑफ
आउट ऑफ मेन सब्जेक्ट मैटर, लेकिन जनरल प्रिंसिपल यही है। अब आप कोई भी सोच के देख लीजिए, जो भी आपने काम किया हो उसमें ये 5 चीजें जो हैं वो आई होंगी आपकी। आप इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, व्हेन यू आर हियर, देन ये रिकॉल अपनी लाइफ में देखिए, इसमें पांचों आपकी होंगी। सोच सकते हैं आप? या सब क्रियाकलाप जितने हैं उसमें यही कुछ हो रहा है कि बॉडी कर रही है परफॉर्म, सेंसेस कर रही हैं परफॉर्म। अगर सेंसेस ठीक चल रही हैं तो परफॉर्मेंस ठीक होने के चांसेस है। अगर एक भी सेंस थोड़ी सी गड़बड़ करती है तो गड़बड़ हो जाती है। many different and kinds हाँ, of अगर सेंस वेंस हैं और काम ही नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं घर में ना। या नहीं, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते पैर में दर्द शुरू हो गया, वो साइकिल भी नहीं चलने वाली, तो हाँ। उतर के या घसीट के साइकिल को ले जाएंगे या फोन करेंगे ये कोई हेल्प कराए, मेरे तो एक सेंस चल नहीं रही, पैर नहीं चल रहा या कुछ नहीं हो रहा, या कान बंद हो गया, तो ये जयंती जी फोन कर रही हैं, दीपक उठाओ, बोलते नहीं। मैं कहूंगा कुछ सुन नहीं रहा, कान नहीं चल रहा, सेंस नहीं चल रही। वो भी एग्जाम्पल ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे सुरेंद्र जी के क्या कहते हैं ग्रैंड सन का एडमिशन ऑक्सफोर्ड में हो गया। तो देखिए उसमें कितनी चीजें हुई, तो ये 5 चीजें काम आई। एक तो प्लेस वो है वो, और उसके बाद उसने एप्लीकेशन भेजी, दीज आर द टूल्स। ओके, एप्लीकेशन तमाम जगह भेजी, और क्या कहते हैं अपना रेज्यूमे बढ़िया बना के भेजा होगा, बैकग्राउंड जो भी चाहिए वो कर रखी होगी, और उसके बाद क्या कहते हैं एफर्ट्स, सब ईमेल करना, वो करना, ये सारे एफर्ट्स में आते हैं। उसके बाद फिर चांस की बात थी देवी। अगर हाँ, और हो सकता है उस साल कैंडिडेट जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है जब लोग एडमिशन करते हैं तो किसी साल कैंडिडेट जो होते हैं बड़े टॉप क्लास के आते हैं, तो उसमें जो ऑर्डिनरी नहीं मतलब जो अच्छे से अच्छा भी होता है वो उसको भी एडमिशन नहीं मिल पाता है। लेकिन कभी एप्लीकेशन कम आती है, या कभी जैसे आप मान लीजिए कभी ग्रेजुएशन करके निकले तो बड़े हाँ मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट या मेडिकल में उनको उस साल जॉब मार्केट इतना खराब होता है कि नहीं मिल पाती है, और किसी साल जॉब मार्केट बड़ा अच्छा होता है कि जॉब मार्केट की बहुत ये प्रचलित है कि कई बार जॉब्स आजकल ही देख लीजिए, जॉब इतनी ज्यादा लगी पड़ी है, लोग कोई काम नहीं करना चाहते, निकल गए इंडस्ट्री से, राइट। वो कहते हैं हमने काम नहीं करना, तो वो उनको बोनसेस दे रहे हैं, कह रहे हैं आ जाओ। एक जगह अभी मैंने सुना था कि वो कह रहे हैं कि आप इस मॉल में आ जाओ और अपनी रेज्यूमीज मल्टीपल कॉपीज लेके आ जाओ, और आपको ऑन द स्पॉट आपकी इंटरव्यू होने वाली है और आपको जॉब पे अभी भेजा जाएगा। इतने डेस्परेट हो गए हैं। हाँ, और कभी ऐसा होता है जैसे 2009 में जब वो मार्केट क्रैश हुआ था, क्या कहते हैं, तब अच्छे लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी। यस, हर्षद मेहता। हाँ जी, समय की बात, हर्षद मेहता के टाइम ना। हाँ, तो वही एक ही दिन में हमने 10 लाख गंवाया था। अच्छा, हर्षद मेहता के टाइम पे। अच्छा, ठीक है। चलो आपके पास 10 लाख था तो गवाया। आज सुबह ना सुन रहा था क्वेबेक में there is a lawsuit going against the government. Okay, you might have heard the same. Yeah, Quebec. And they're going to the court. Okay, the caretakers do not want to take vaccination. Yeah. And it's for 20,000 of them, and yet they want to treat them in this way. So nurses and doctors, yeah. The lawyer said that way. Listen, if they don't want them, they can find 20,000 jobs anywhere in the world. There's so much in demand. Yes. Yeah. Now look at this way. Where is the dharma? Where is all this thing? They are the people who are looking after in a medical field, yes. And they are the ones who are contradicting in every way. Yeah. So ये job का चक्कर है ना, ये they know they got the power. All right.
So they're not being dharmic at all. No, we And, are going through a very, very weird phase on this planet. I tell you, it's all kinds of Yeah, different scenarios happening. Maybe it happened before, but this is unusual altogether. Like पढ़े लिखे लोग भी they are like anti-vaxxers, anti-maskers. Few doctors even in Mulund. Yeah. Few doctors are against vaccine. नहीं लिया है. Yeah. क्या बोलते हैं क्या आपको? अगर आप उनसे बात हुई तो क्या What's the बोलते हैं? reason? Why are they like that? उनका argument कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? यही तो बात है. एक कंस्पिरेसी भी चल रही है Nonsense भाई लोग। argument. बहुत तगड़ी conspiracy. Yeah. नहीं, वो कह रहे हैं कि ये कंस्पिरेसी है, वैक्सीन जो वैक्सीन लोग लेंगे वो मर जाएंगे, हाँ, और जो मैंने नहीं कहा लेंगे अभी वो तक जिंदा तुम्हारा- रहेंगे। या मेरी डॉक्टर कहती है जो बंदर है वो Funny argument is that. या मैंने कहा मैं अभी तक तो मरा नहीं, मेरी वाइफ भी है, मेरे सब जितने भी peers हैं they're all fine, everybody's it's good, it will happen, you know, you guys are shedding virus. No, I'm not shedding nothing. नहीं, दीपक जी वो कह रहे हैं कि 2 साल लगेंगे इसमें। ऐसे ही मान रहे। For 2 साल में I might naturally will die as well. So मैं क्या 2 साल में वैसे ही मैं जाने की तैयारी करने लगूंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी नहीं कर रहा। और वैसे यूएसए में 3rd बूस्टर डोज अनाउंस हो गया है and people have already started. The frontline workers, doctors and all, they are getting it. अरे बहुत कंट्रोवर्सी India है। में Seniors के लिए भी 65,000 I का couldn't have special taken dose आया है. there क्योंकि 8 months का गैप होना चाहिए। हाँ 8 का सेकेंड डोज के बाद। सेकंड के बाद यस। वो तो रहा है यूएस में, लेकिन बहुत कंट्रोवर्सी है। और यहाँ तो अभी कुछ ऐसा है ही नहीं कनाडा में। यहाँ They ये just announced the booster dose. इंडिया में कुछ मेरी एक फ्रेंड ने लिया है, डिटेल आई हैव नॉट आस्क्ड. शी हैज टेकन 65,000 का कुछ डोज निकला है. डिटेल आई विल, इफ आई नो आई विल टेल यू कि इट विल प्रिवेंट करके. एंड those people can take who are suffering from corona after treatment. पर जैसे आपने ऐसा कुछ 65,000 का डोज आया है, डिटेल मैंने पूछा है, आएगा. जो आपने कोर्ट केस मेंशन किया ना, मुझे लग रहा था कि ये होगा sooner or later, because when they're gonna be firing people en masse, of course they're gonna say, why should we lose our job? I don't think they will go that far. It's too higher risk. They can't do that. They got to keep the fund. So somehow there'll be a compromise somewhere. And they've already extended by a month. They've given them one more month. We will get the clarification in the of the arguments in the court. You know, it will come out and then it will be published everywhere, and they'll say, okay, this side said this side said that. I was hoping that they're gonna come on the TV and have an open debate. There was, if I may kindly say that, this was a debate going on CBC this morning. This was about 10 minutes with a lawyer. Yeah, I saw that. And in the end, sorry, I'm getting away from Bhagavad Gita. Yeah, I apologize for that. I didn't mean to. And today's the case will be purely a initial stage. There will be nothing discussed. Yeah. So they deferred it for a month. What I'm saying is, and I bet you that eventually they'll back off, or there'll be a compromise somewhere. It's a long game. We will and here also, I've taken this flu shot I mentioned on the. I took it yesterday. That for the seniors, and I don't know whether I need it or not. I've taken for the last 40 years. It doesn't make any difference. Okay. Yeah. No, I got a call this morning also from my doctor's office. They said flu shots are here. You want to take it? I said, we don't take flu shots. We never taken any. So I'm not going to start taking. So this is good enough, whatever I'm taking, like for COVID. So see, I have taken flu shot once. Okay. And I don't know whether I should be taking again. So I'm waiting for the 3rd booster dose vaccine. Okay. Yeah. So, yeah.
अच्छा ये चलिए अब ओके, सो अब यहाँ पे एक सेकंड जरा, जी 440 या जब वन सेकंड, आई लाइक टू शो यू समथिंग। उसमें एक श्लोक आया है, हाँ जी वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतन वेगम यो विषाहेता धीरा सर्वम अपिमम पृथ्वीम सा शिष्यत। जो वाचो वेगम, वाचो वेगम मतलब है कि जो चीज रुके ना रुके, है ना, वेग उसको कहते हैं, वेलोसिटी जो चल रही है। तो जो वाचो वेगम होता है कि मतलब बोल, वी हैव टू स्पीक, और वो उसका वेग होता है, वो चलता 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 चला जाता है। तो उसमें बताया है, इस संश्लोक में बताया कि जिसने अपने इस वेग को रोक लिया, और दूसरा मनसा क्रोधा वेगम, और विवेक का, इसको आप इम्पल्स भी ले सकते हैं ना, इम्पल्सिव यू नो। तो एक तो वाणी का इम्पल्स होता है कि दैट वी हैव टू कीप ऑन गोइंग, और दूसरा मनसा वेगा, माइंड एंड जिव्या वेगम, और दूसरा वेग होता है जिव्या मतलब जवान का कि खाना, और उपदरस्थ जो और इंद्रियों का। इसने इन वेग को रोक लिया, वो सब संसार को अपना शिष्य बना सकता है। ये इस्कॉन की एक हमको उसमें जो गोपाल कृष्ण जी थे उन्होंने सुनाई थी, तो मैंने आप लोगों को सुना दी। अच्छा अच्छा ठीक है। वही सेंसेस के बारे में बोला है ना वो, उसमें सबसे पहला ये बोला है वाचो वेगम। हाँ, तो बोलने वाचो वेगम में तो कंट्रोल होना चाहिए। वाचो तो वेगम है कि अपना वाचो वेगम का अपना कंट्रोल करो। हाँ आप लोग इधर उधर चले जाते हो सब्जेक्ट से। I know this the appropriate ये ऐसा होता है कि सब्जेक्ट जो रिलेटेड होते हैं ना सब्जेक्ट में, जैसे ये आया था इसमें दैव मतलब चांस की बात है, कैसे चांस होता है, तो उसके बाद फिर उससे एक बात निकली, दूसरी बात निकली, तीसरी बात निकली ना, इस तरह से होता है। अच्छा, ये होता है गुरुओं की तरफ से। कभी कभी जो वक्ता है, जो कि बैठा है, उसकी ज्यादा हाथ होती है, लेकिन अगर उस जो वक्ता कम बोलने वाला हो तो फिर श्रोताओं की हो जाती है। पर देखिए ना, जो आपने बोला उससे अगले श्लोक में उसका आंसर भी आ गया है। जो अगला श्लोक हम पढ़ने वाले थे ना 15वां, उसी में बोल दिया, वट एवर राइट और रॉन्ग एक्शन ए मैन परफॉर्म्स बाय बॉडी माइंड और स्पीच इज कॉज्ड बाय दीज 5 फैक्टर्स, विच इज द प्रीवियस श्लोक का 5 फैक्टर्स। तो ये दैवी हो गया है, तो दैवी ऊपर से प्रकोप हो गया। बोलो बोलो बोलो। हम लोग बोलने लग गए। 15 मिनट रह गए हैं, चलिए। मेरे ख्याल से। अच्छा, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ अभी दीपक जी। वो कल का आपने टाइम चेंज कर दिया। मेरी तो डॉटर ने सारा अरेंजमेंट करा था अबाउट हर मीटिंग्स एंड ऑल, तो 3 बजे वो मेरे को छोड़ने वाली थी, और अभी वो 11 बजे तो आ ही नहीं सकती है। She has moved the meetings to the morning afternoon वाली। तो शायद मैं तो फिर You need a ride? हाँ, मेरे पास तो I mean I need to. You need a ride from someone? I need a ride या 11 बजे के करीब है, तो क्योंकि she can't come to pick me up क्योंकि उसकी मीटिंग्स है। तो आपकी रिक्वायरमेंट है राइड एंड रिटर्न राइड। हाँ, going and coming. Going and coming. आप लतेश के पास रहते हैं, लतेश और मधु तनेजा जी जो है पास, but I don't know, do they drive? Because I was going to give them a ride because मैं सुबह ना खेल रहा हूँ, तो I had to check with him and खेल के मैं वहाँ से आ जाऊँगा। तो then
I'm sure if you're not that far, like Jayanti lives very close to them. And I am very close. I am 5 minutes walk to Jayanti's house. Okay. And even Taneja's, they are also living close by. Why don't you send a note to Taneja's? They're taking their car tomorrow, I know. Achha, I don't know whether they drive or not. I thought maybe he's driving tomorrow, I know. पहले मेरे साथ आना था, इन्होंने जयंती जी ने भी आना था. So then things changed. तो ऐसा कि कल का सुबह को, because it's morning, by the time I come home, it'll be 10 o'clock. I'll just take a quick shower and come. और else अगर नहीं होता तो मैं वहीं से सीधा खेलने के बाद चला जाता. So that I would have offered you, but I think you live very close to them, and they'll be happy to. If you ask them, they will be very happy to do it. But I haven't had any kind of conversation with them. हाँ, मुझे ये मालूम है कि वो कौन है. मैं बोल दूंगी रे. बात नहीं हुई है. You want ride ना? मैं तनेजा को बोल दूंगी. आप अपना एड्रेस भेज देना ना. मैं तुम्हारा नंबर उनको भेज देंगी, वो तुमसे बात कर लेंगे. हो गया? All right, so kind of you. चलिए आज यहीं तक हम करते हैं भगवत गीता. मैं देखो भगवान के साथ क्या करती हूँ, शेयर करूं, चलेगा? भगवान को पहले कुछ भी त्याग करके नहीं मांगती थी. पहले मुझे ये दो तो मैं ये करूंगी. एक बात बताती हूँ, मेरी कजिन है ना, उसके लड़के का शादी नहीं हो रहा था. हम किसी शादी में बैठे थे. एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, एवरीवन नोज. तो मैंने बोला कि अरे वो बहुत मीन्स शी वाज सो फीलिंग सो बैड कि मेरे लड़के का शादी नहीं हो गया. तो मैंने कहा अगर तेरे लड़के का शादी 1 महीने में हो गया तो आई विल लीव चॉकलेट फॉर 1 year. एंड मेरा बैड लक या गुड लक उसका हो गया एंड आई हैव टू लीव चॉकलेट. छोड़ा मैंने 1 बरस. परमानेंटली तो नहीं छूट गया. दीपक जी ये रिकॉर्ड हो रहा है. परमानेंटली आई लाइक चॉकलेट. रिकॉर्ड हो गया. I have to go अभी. Okay. So then tell Taneja, Mr. Taneja. Don't repeat. I will do immediately after class. Okay. Okay. Thank you very much. I'll have to also. God bless you. They will take you. Yeah. मेडिटेशन तक चलते हैं. Thank you. क्षमा मांगती हूँ, मैं नहीं पहुंच सकूंगी क्योंकि मेरे ग्रैंडसन का कल बर्थडे. अच्छा चलो हैप्पी बर्थडे टू योर ग्रैंडसन. हैप्पी बर्थडे. Yeah, I would love to. ठीक है. ओके जी. या तो पहले नाम दिया तो पनिशमेंट ले लो दीपक जी. उषा जी के पास से पनिशमेंट ले लो. चलो ठीक है. ओके. तो कल 11 बजे से 1 बजे तक है. हाँ जी 11 से 1. अच्छा वही 24 क्या नंबर है 7420 नो 24 समथिंग उसमें 2420 ऐसा कुछ है. हाँ वही है. ठीक है. I was so excited once you made Thursday ना. Thursday I was able to come. तो इतना खुश हुई ना तो मगर फिर कैंसिल हुआ. या 542 शाम को तो नहीं कोई प्रोग्राम होगा ना. 542 ठीक है. थैंक यू. शाम को नहीं कोई प्रोग्राम होगा. सुरेंद्र जी का फोन आ गया. शाम को तो नहीं. हेलो. Oh, I see. Yeah. Means अपना मीटिंग कैंसिल होगा ना फ्राइडे का. हाँ वो वाईफाई धीरे धीरे आएगी ना, वो टाइम लगता है उसको. या रीसेट है जी. Yeah, we are okay here. Yeah, it's all going. Yeah, we're continuing. We're gonna be just doing a 10 minutes meditation now. Yeah. Okay. ठीक है. हाँ ठीक है. Okay, that's good. Yeah. Okay जी. Okay, thanks. क्या सुरेंद्र जी को क्या हुआ? वो छोड़ के कैसे चले? वो कहते कि लाइट चलेगी वहां पर, बिजली चलेगी. अच्छा. तो बिजली के साथ ही सारा कुछ कनेक्टेड है ना. इधर भी ऐसा होने लगा बिजली का. बॉम्बे जैसा, इंडिया जैसा. अचानक कई बार चली जाती है तो फिर आ जाती है, तो फिर वापस आ गई तो फिर वो वाईफाई अभी टाइम लगता है उसको रीसेट होने में.
तो टाइम लगेगा. He will miss the meditation. So we gonna just do our 10 minutes. ओके, करते हैं हम लोग अपना वो मंत्र के साथ. ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतद् चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय अभिधीमहि.
तो कल 3 to 5 क्लास नहीं है ना, ये अपना नहीं है ना मीटिंग? कल 3 to 5 नहीं है, क्योंकि कल हम लोग वहीं पर मिल रहे हैं सब लोग, तो कल का स्थगित है। 3 to 5 पोस्टपोन्ड टू नेक्स्ट वीक। ठीक है जी। हाँ, तो राज्य की आवाज नहीं आ रही, कुछ कह रहे हैं राज्य? नहीं, मैं कह रहा हूँ होपफुली बरसात नहीं होगी सुबह। होपफुली बरसात नहीं हो भी। आई मीन तो फोरकास्ट तो दिखा रहा है कि 11 बजे से लेके अबाउट 2-3 बजे तक बरसात नहीं है, पर क्लाउडी है। सो वी नेवर नो। आप छतरी एक एक ले आएंगे अपने साथ, अगर जस्ट इन केस इट हैपेंस, देन देखिए व्हाट कैन वी डू? ये गीता का जो हमने आखिरी श्लोक पढ़ा उस पर ध्यान दीजिए। पंचैतानि महाभाव कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तम सिद्धये। सब 5 हैं, उसमें से आपने 4 तो कर लिए और 5वां है देव। तो अब देखिए अगर बरस गया तो नहीं होगा, पड़ेगा। या हाँ, तो प्रैक्टिकल ऑल द नहीं बेस्ट। या थैंक यू। क्या इसीलिए चेंज किया था वेदर की वजह से? हाँ जी, बिल्कुल वेदर की वजह से चेंज किया। क्योंकि आफ्टरनून में तो फिर गड़बड़ है। या जब हमने पहले ओरिजिनली वेदर देखा था तो फ्राइडे का बिल्कुल सनी दिखाई दे रहा था, खूब सनी था। या वो जो तस्वीर में दिखाया था सूर्य नारायण बिल्कुल खिले हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अक्टूबर बहुत अनरिलायबल है। यस, मिड अक्टूबर से या कनाडा का, यहाँ का, दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अक्टूबर इज वेरी डाइसी, चेंजेस ऑन द फ्लाई। चलिए ठीक है। थैंक यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। चलिए।